very sorry that on behalf of the workers of this country was watching this Himachal Pradesh Rajya Sabha election. So in this Rajya Sabha election we lost a very senior leader, and I think our Honorable Chief Minister accepted that some failure has happened, but it will not continue further. We have spoken to all the MLAs personally. We have spoken to the PCC President. We have spoken to the Chief Minister. Still one round of discussion also will happen later. So all of them have sorted out all their differences. They will work together. They will see that in the Lok Sabha they come out with a good numbers. And there is no, we are forming a coordination committee between the party and the government with 5 to 6 members, with PCC President, this Chief Minister, Deputy CM, and other members we will announce from the Delhi, the coordination committee, which should be formed between them. And all of them have assured, taken a oath at any point of time, they will all work together to save the party and save the government. There is a big push going on from the BJP side, creating a lot of news, but the numbers can be seen that everyone is united here, so there is no problem. So Honorable Chief Minister has agreed that he is taking everyone together. The PCC President also had conveyed our solid support to the government. The party and the government and the MLAs and the ministers will work together. Rest our Honorable former Chief Minister, Mr. Hooda ji, will explain to you. Then my CM and CLP will speak to you. देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। आला कमान से वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। They will only give the PCC President and will give the names. They will give from the organization side. वो देंगे कोई They will give the names. They have already given the names, but I don't want to disclose here. We will announce from the Delhi. इनका काम क्या क्या रहेगा सर, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी? ऐसा है, इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट कैन एनी न्यूज। कोऑर्डिनेरियम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government and our Honorable Chief Minister Sukhu is sitting adjacent to me. Sukhuji will continue till for 5 years? See, I am telling you, we have a Congress government, I say. Congress government is there. Yes. Sukhu is the Chief Minister. He will be the chief minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because why you are no question. Why you are putting hypothetical question? Yes. When he is chief minister, sitting chief minister, he is chief minister. Rest of the all MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen
Mr. Shukku, which was being proposed by PCC President. Simple it is. जो सर बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया था उसको लेके क्या कहोगे आप? They are doing lot of operation. They will do daily. They will do. They don't have any work. They will do daily. तो All इसलिए MLAs know that. बीजेपी ने अभी ये अपने सभी विधायकों को ये कहा कि सारे काम छोड़कर 25 के 25 विधायक शिमला चले जाएं। लग ऐसा रहा है कि दे आर कुकिंग समथिंग। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर ओपिनियन? Nothing to worry. Let them cook anything. Let them waste their time. लग रहा है कि ऑपरेशन Now party stands united. No operation and strong. Lotus here. On the disqualification of six MLAs, BJP is saying it is illegal. They are moving to the court. See, That is speaker decision. it is the speaker decision. In what way BJP is affected? BJP, it is not BJP MLAs. Congress MLAs at the floor of the house. Floor of the house. It is not on the floor. On the floor of the house, it has taken. On the eyes of the speaker. On the eyes of your camera, everything has been done. It is a speaker decision. We don't want to interfere with the speaker decision, whatever has been happened. As a parliamentary affairs and a chief whip, he has filed the objection. The law is within the hands. We don't want to intervene with the law of the land and the decision of the speaker. It is जो ये 6 विधायक हैं जो बागी हो गए, इनसे बात करने की कोशिश की थी आपने? Let me not speak much on this. My PCC president will speak. Madam. बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था। उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है। उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन 4 सीटों में विजय हासिल करेंगे। क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमान के सामने, वो इश्यूज से एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुडा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। Are you happy with the committee and do you think your issues would be addressed after this? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाईकमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा। जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर क्या विक्रमादित्य जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसका क्या? He has already withdrawn the resignation. He is working here. He will be attending the cabinet. Very young Matter man. ended yesterday only. Why are you putting today? Okay, thank you. We have to go to the flight. Okay. सुखू साहब, अब जबकि सब कुछ सही हो गया है, क्या कहेंगे सर? आप क्या बोलेंगे ना। सुखू साहब बोलेंगे? क्या प्रॉमिस किया गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ नॉर्मल है सर, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब
पता नहीं कहाँ से ये न्यूज आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजोरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी न किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी। वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है। हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूँ, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। बूढ़ा साहब, मेरा सवाल रह गया, आप यहाँ आए थे बातचीत करने विधायकों से, तो जो 6 विधायक है उनसे संपर्क हुआ था आपका? मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है। ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए जी। उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम शराफत में ज्यादा रहे। ऐसा है, सबसे पहले बता दिया जो वहाँ। At the same time, discipline is very much important in the party. First, the priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be united. They will work unitedly with discipline. Thank you. गलती माफ की। सब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और पार्टी में और सरकार में समन्वय बना रहेगा।